So everyone see doubt of question number 2. I'm sorry, number 3. So in question number 3, we are given the value of sin theta plus cos theta. Sin theta plus cos theta is 0 and theta lies in fourth quadrant is already given to you. Theta lies in fourth quadrant is already given in the question, and you are asked to determine the value of sin theta and cos theta. So everyone note down. If sin theta plus cos theta is 0, I can say sin theta is equal to minus cos theta. All right. If sin theta plus cos theta is equal to 0, can I say that sin theta is equal to, if I take cos theta on the right hand side, it will become minus cos theta. All right. Now see, I can write this as sin theta by cos theta equals to minus 1. Please check once. क्या मैं लिख सकता हूँ sin theta divided by cos theta equals to minus 1? Because यहाँ पे minus cos theta है, का मतलब क्या है? इसका मतलब है minus 1 into cos theta. Cos theta को मैं sin theta के डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये क्या हो गया? Sin theta by cos theta equal to minus 1. That is, the value of tan theta is minus 1. Now in this sum we are asked to determine the value of sin theta and cos theta. So what we'll be doing? We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. हम लोगों को पता है कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We know this. And we also know that sec square theta minus tan square theta is 1. And the third formula, we know that this is cosec square theta minus cot square theta is 1. So out of these three formula, it is better we choose the second one, because in the second one we can put the value of tan theta and determine the value of sec theta. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये तीन में से we will choose the second option. We'll choose the second option because we know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Put the value of tan theta, which is minus 1 here. Okay, put the value of tan theta, which is minus 1 here. So you will get how much? Sec square theta minus, what is minus 1 ka whole square? It is equal to plus 1. Now take this minus 1 on the right hand side. So you'll get 2. So if sec square theta is 2, what will be the value of sec theta? Tell me. अगर मान लो 1 plus minus 2. plus minus plus minus 2 नहीं. How much? So plus minus 1. Plus The minus root under 2. So root 2. root 2 What has happened to you then? I mean, if sec square theta is 2, sec theta will be how much? It will be square root of 2. So what is root 2? Root 2 is not 1. So if sec square theta is 2, what will be sec theta? It will be plus minus root 2. मतलब root सिर्फ root करना है ना. root 2 का root थोड़ी ना 1 होता है. 1 into 1 2 होता है. There are many students who are answering 1. I don't know how. क्या 1 into 1 2 होता है क्या? 1 plus 1 2 होता है ना. नहीं सर मेरे को लगा आप पूछोगे कि cos का क्या होगा, इसीलिए मैंने बोला था 1/2. Okay. Now, if sec theta is plus minus root 2, what will be the value of sec theta? Plus minus में से कौन सा वैल्यू लेना है बताओ तो? थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा. Positive. तो प्लस रूट 2 हम लोग ले लेंगे, and we will write in the reason that theta lies in fourth quadrant. Now we know the value of sec theta. We can determine the value of cos theta, which is reciprocal of sec theta. Last में tan sin निकालना है. Now we know that tan theta is equal to sin theta by cos theta. Right? We know tan theta is sin theta by cos theta, and we have to determine the value of sin theta. So can I say that sin theta is equal to tan theta into cos theta? Check once. क्या मैं बोल सकता हूँ कि sin theta का वैल्यू tan theta into cos theta के बराबर?
बिकॉज हम लोग को Yes, sir. इस सम में हम लोग को tan थीटा का वैल्यू पता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू? -1. We know the value of cos theta, which is 1 by root 2. So what will be the value of sin theta? It is -1 by root 2. I hope it is clear to everyone. Check once. So मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ. sin theta plus cos theta 0 है, तो मैंने cos theta को राइट में लिखा. cos theta डिनोमिनेटर में आ गया, तो sin theta by cos theta tan theta होता है, उसका वैल्यू -1. अब मैं tan theta को यूज करके मैंने सबसे पहले sec theta निकाल लिया. sec theta से cos theta, और उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्टली sin थीटा निकाल सकते हैं. So everyone is copied first. Sir, So everyone note down. So there was only one doubt in the previous day's homework, so that is all done. Now let me tell you what are the things we'll be doing today. Now, in today's class, the topics we are going to discuss are: number 1, you all know the value of sin 0 degree, sin 30, sin 45, sin 60, but then also I'll be explaining you how to make table. Okay, you have done in class 10, but then also there are things I'm not explaining the things सर कि ये सोच के कि तुम लोग class 10 में कितना आता है कितना. So मैं एक बार वो table पहले बनाना सिखाऊं. Then next, second topic I'm going to explain to you is कि how to find out the values of trigonometric functions whose angle is more than 90 डिग्री, जैसे कि 135 डिग्री, 225 डिग्री. तो इस तरह का हम लोग वैल्यूज निकालना सीखेंगे. सो हम लोग का आज का टॉपिक यही रहेगा. सो एवरीवन जस्ट राइट इन फॉर्मूला कॉपी जो हमें भी टेबल बनाना सिखा. ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू कैसे टेबल में निकाला जाता है, एक बार फटाफट तुम सबको लिखो अपने. Now, before starting this, let me explain you. Not explain, already it is explained to you, but let me just once again summarize. See, there are 6 functions, right everyone? There are total how many functions? 6. And the functions are sine, tan, cos, sec, cosec, and cot. Students, tell me, what do you mean by that two functions bear reciprocal relationship? Reciprocal relationship मतलब ये होगा कि sin थीटा का जो रेशियो होता है और जो cosec थीटा का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है बताओ तो रेसिप्रोकल होता है. मतलब दोनों का जो रेशियो एक दूसरे का क्या बताओ तो रेसिप्रोकल है. मतलब ये हुआ कि अगर sin थीटा का वैल्यू हाफ होता है तो फिर cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा 2. sin थीटा का वैल्यू अगर 4/7 होता है तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा 7/4. So similarly, which are the other two remaining two जिसमें दो चीज जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दो फंक्शंस. कैन यू टेल मी दे आर? यस, cot and tan, cot, tan, sec, cos. sec and cos. बिकॉज cot b by b होता है तो tan क्या होता है p by b होता है. एंड sec and cosec, cos sorry not cosec sorry and cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो sec क्या होता है h by b होता है. एंड दैट्स व्हाई वी राइट दैट sin theta is equal to 1 by cosec theta and we write cosec theta equal to 1 by sin theta. We say that tan theta equal to 1 by cot theta, or we can say cot theta equals to 1 by tan theta. Sec theta equal to 1 by cos theta and cos theta equal to 1 by sec theta. Now अब एक बात बताओ, ये तो हो गया कि रेशियो इन दो फंक्शंस का जो रेशियो है वो रेसिप्रोकल होता है रेशियोज.
किस किस का? साइन कोसेक का और टैन का, सेक कॉस का। ठीक है, अब एक बात बताओ, कौन से दो फंक्शंस का एंगल्स कंप्लीमेंट्री, ध्यान देना, कौन से दो फंक्शंस का एंगल्स कंप्लीमेंट्री होने के बावजूद भी उसका आंसर सेम होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा? बताओ, टेल मी। You know what is the meaning of complementary angles? Complementary So angles 90 means degree. two Sir, sin angles are and said to cos. be complementary. जिसका जिसका Sir, जिसका sum sum 90 90 degree degree होता सम 90 90 degree। तो एक बात है। Sir, बताओ, sin and cos. हाँ, so we find sin that cos Tan or 30 cos. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सो वी फाइंड दैट 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? 60 डिग्री होता है। अब बताओ मुझे, कौन से दो फंक्शंस को अगर हम यूज करेंगे दोनों तरफ तो उसका आंसर सेम होगा? कौन से फंक्शंस का? Sin and cos. Sin and cos. sin and cos। ऐसा भी हम बोल सकते हैं ना, cos 30 sin 60, बोल सकते हैं कि नहीं? अगर Yes, sin sir. 30 cos 60 के बराबर होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि cos 30 sin 60 के बराबर होगा? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि sin का एंगल और cos का कंप्लीमेंट्री एंगल, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? sin का एंगल और cos ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिमाग में जा रहा है सब कोई का? समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सिमिलरली tan का एंगल और उस एंगल का कंप्लीमेंट्री कॉट क्या होगा बताओ तो? बराबर होगा। क्लियर हो रही है? और एक क्या चीज बताओ तो? बताओ एक और क्या चीज है? सेक का Sec cosec. cosec का, समझ में आया? तो बराबर होता है। ये चीज क्लियर है सब कोई का? मतलब मैं अगर ये बोलूं तुमसे कि which two functions angle complementary angle results same answer, then your answer will be sin and cos, tan and cot, sec and cos. You have to answer this way. और रेसिप्रोकल बोले तो sin cosec, tan cot, sec और cos। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसका वैल्यूज निकालने का तरीका क्या होता है, देखना एक बार, कि यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन, हर जगह हम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, सारा का फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को क्या कर दो बताओ तो? 4 लगा दो। सारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 4 बना दो और न्यूमरेटर को 0 से स्टार्ट करना और 4 तक ले जाना। इस फ्रैक्शन का क्या करना तुम लोग, जो भी आएगा, मतलब जो भी हम लोगों ने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। नाउ 0/4 क्या होता है बताओ तो? 0/4 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0? 0। 1/4 का देखो, 1/4 को और हम सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब 1/4 को और हम सिंपल बना सकते हैं नहीं। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 2 ठीक है, अब बताओ मुझे 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? So 1/2. 1/2. 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 is a perfect 1/√2. 1/√2 2 is not a perfect square। 3/4 को और सिंपल नहीं बना सकते, √3 हो गया 3/2 और ये हो गया 2, और ये क्या हो गया? 4/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 अब बस क्या करना, ये वैल्यू को यहाँ पे लिखते जाओ। मतलब ये तो हो गया स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, दीस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स का मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। लेकिन अगर मान लो सपोज 135 डिग्री हो, 225 डिग्री हो, तो उसका क्या करना है वो हम इसके बाद बताएंगे। अब देखो, अब बताओ मुझे कि cos 0 डिग्री का वैल्यू, ये तो हो गया sin का, लेकिन अगर हम ये बोले कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो कोई बता Sin सकता है? 90 degree. sin होगा 90 sin 90 डिग्री के बराबर, बता सकता है कोई? रीजन दे सकते हैं? Sir, complementary angles. Yes. 0 plus cos 90 0 90 होता डिग्री है. और 0 का कंप्लीमेंट्री का साइन क्या होता है? सेम होता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू sin 90 डिग्री के बराबर होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू sin 60 के बराबर होगा। ये क्या होगा? 1/√2, this will become half, this will become 0। All right everyone, next। अब बताना एक बार tan थीटा क्या होता है? अगर हम sin का और cos का वैल्यू पता है तो tan थीटा किसका वैल्यू होता है? किसके sin बराबर? by cos. sin by cos sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है। तो ये रहा sin थीटा का वैल्यू, ये रहा cos थीटा का वैल्यू। तो 0/1 कितना होता है बताओ? 0. 0 0. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/√3. 3. 1/√3। √3. What is 1/0? फटाफट बताओ। Not defined. Undefined. undefined Undefined। This is undefined, right? अब देखो नेक्स्ट, कोसेक का वैल्यू। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1,
तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? Undefined. अनडिफाइंड, वेरी गुड, 1 नहीं होगा, ठीक है। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड। नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ? So √3. क्या √2, ये हो गया 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का, तो ये हो गया 1 2/√3 √2 2, और ये कितना होगा बताओ तो? So undefined. एंड यू ऑल नो cot थीटा क्या होगा? cot का मैंने यहाँ बनाया नहीं, बट तुम लोग अपने कॉपी में बना लेना। cot किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का। tan का, तो 0 का। और हम ये भी बोल सकते हैं कि cot tan का कॉम्प्लीमेंट्री भी सेम होता है, मतलब cot का 0 डिग्री tan 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज समझना। cot का 30 डिग्री का वैल्यू और tan का 60 डिग्री का वैल्यू भी बराबर होता है। तो तुम दो काम कर सकते हो cot में, ये वैल्यू को बस उल्टा लिख दो, यहाँ पे उल्टा मतलब इसको पहले इसको बाद में ऐसे करके, या फिर इसका रेसिप्रोकल भी करोगे तो आंसर है। तो सबको अपने अपने कॉपी में फटाफट अपने अपने कॉपी में सबको ये चीज को पहले कॉपी करना है, और कॉट जो है मैंने यहाँ लिखा नहीं है उसको कंप्लीट करना। तो फर्स्ट now after you all know, I mean you have noted in your copy how to find out the values of standard angles. Now the next thing is write down the steps. अब मैं जो steps दे रहा हूँ, ये steps कैसे कहाँ काम में आएगा, ध्यान से सुनो। Using these steps will be calculating the values of trigonometric functions of, I mean where the angle is like 135 degree, 350 degree, 1125 degree, मतलब ये जो बड़ा एंगल्स होता है इसका हम लोग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या हम कैसे इस एंगल को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ, बट फॉर दिस एवरीवन राइट डाउन द स्टेप्स using which we will solve these type of questions like sin 135, 250 डिग्री का sin का वैल्यू, cos का वैल्यू, ये सब हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले सबको स्टेप्स लिखो, और स्टेप्स को समझाना मेरा काम है, बस अभी तुम लोग कॉपी करना। सो एवरीवन नोट डाउन द स्टेप्स अगेन। So suppose you have got a trigonometric functions whose angle is more than 90 degree. How to solve these kind of questions? Write down the steps.
you will just note up in a copy. Now see the next part. Now, see, I just gave you the steps and nothing else. ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्टेप समझाया क्या है स्टेप्स में, जस्ट तो मैंने कॉपी किया, तुमने कॉपी कर लिया वो चीज को अपने को, राइट? नाउ सी, बट ये क्या है स्टेप्स, कैसे हम लोग को इसको यूज करना है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. So please concentrate, pay attention, don't look here and there. Okay, in other activities, please concentrate here. And ध्यान से देखना, जहां भी कुछ चीज डाउट होगा मैं तुम लोग को टाइम दूंगा पूछने का. You can ask, note it down and you can ask all your doubts. So just ध्यान से देखो. See, उस 3 स्टेप्स का पहले मैं 3 सेकंड स्टेप बताना चाहता हूं, वो जो क्वाड्रेंट वाला पार्ट है. First I am going to explain you how to determine the quadrant. So everyone pay attention. See, in the quadrant system, you all know that. In the quadrant system, you all know that a circle, when divided into 4 equal parts, we get 4 quadrants. अगर हम एक सर्कल को, जो कि क्या होता है 360 डिग्री, you know that a complete circle is 360 degree. And so, if I divide this circle into 4 equal halves, 4 equal parts, I must say. If I divide the circle into 4 equal parts, we find that we get, this is the first quadrant. And if we move anti-clockwise direction, this is the second quadrant. Now, why are we moving anti-clockwise direction? You all know this also, because angle is measured to be positive in anti-clockwise direction. This is third quadrant and this is fourth quadrant. Starting from this point, I had already explained you that this is 0 degree and first quadrant 90 degree पे end करता है. 0 degree 90 degree. ये 90 degree से second quadrant start हो रहा है और 180 degree पे खत्म हो जाएगा. ये सभी को पता है ये चीज, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी. 270 and this is 270 degree to 360 degree. That is, अगर हम मान लो स्टार्ट बोले तो स्टार्ट ये लाइन से होता है. ठीक है, स्टार्ट कहां से होता है? ये लाइन से. और अगर हम मूव करने का बात करें तो हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? नॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट वी मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ एक चीज नोट करना सब कोई, अगर हम ये इस लाइन पे, मेरा पेन का मार्कर को देखना एक बार, अगर मेरा पेन का मार्कर का टिप इस लाइन पे अगर है, स्टार्ट है इस लाइन से अगर कर रहे हैं, इस लाइन पे अगर मेरा लाइक करता है पेन का मार्कर का टिप, तो अगर मैं एक कंप्लीट राउंड का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ कंप्लीट राउंड, इफ आई टॉक अबाउट अ कंप्लीट राउंड means I am moving how many degree? Can you tell me? I am moving 360 degree. And can I say 360 degree means I am covering 4 into 90 degree? मतलब can I say that 4 into 90 degree means covering means what? I am covering 4 times 90 degree. That's all. Right everyone? अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने एक कंप्लीट राउंड घुमा है, मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है? कंप्लीट राउंड का मतलब क्या होता है? तुम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे तुम्हारा आके खत्म हो रहा है, इसको एक कंप्लीट राउंड हम लोग यहाँ पे बोलते हैं. वन कंप्लीट राउंड मींस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड मेरा जो एंड है वापस से वहीं पे हो रहा है, तो इसको एक कंप्लीट राउंड हम लोग बोल रहे हैं. ठीक है, सो वन कंप्लीट राउंड मींस हाउ मच डिग्री? 360 डिग्री वी आर कवरिंग. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 360 डिग्री? 360 degree means I am covering how many 90 degrees? We are covering 1, 2, 3 and 4. 4 मतलब 4 बार 90 डिग्री को हम लोग कवर कर. ठीक है, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट पार्ट. Now students tell me what is the meaning of 1 into 90 degree? 1 into 90 degree का मतलब हो गया एक बार 90 डिग्री, एक बार. ठीक है, एक बार 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आके रुके. देखो ध्यान से, कहां से मैंने स्टार्ट किया? स्टार्ट अपना हमेशा यहाँ से हो. ठीक है, और एक बार 90 का मतलब यहाँ पे आ गया. Now what is the meaning of 2 into 90? Can you tell me? So 2 बार 90 डिग्री. So 2 बार 90 मतलब एक बार 90, 2 बार 90. ठीक है. What is the meaning of 3 into 90? 3 बार 90. So what is the meaning of 4 into 90? अभी मैंने बताया था 4 बार 90 मतलब हम लोग ने जहां से शुरू किया था वहीं पे आके वापस से हम लोग रुक गए. इसको क्या कहते हैं हम लोग? 4 बार 90. So 4 बार 90 का मतलब हो गया 1 complete round. 1 complete round of quadrant system. Quadrant system मतलब first, second, third, fourth.
So one complete round of a quadrant system is called what? 4 into 90. 4 by 90 मतलब एक complete round. तो एक बात बताना मुझे, what is the meaning of 8 into 90? बताओ तो 8 into 90 का मतलब कितना complete round होगा बताओ? Sir, 2 rounds. 2 complete round. Do you agree that अगर मान लो 4 बार 90, 4 into 90 का मतलब हो गया एक complete round. तो 8 into 90 का मतलब कितना हो गया? 8 into 90 का मतलब हो गया 2 into 4 into 90 मतलब 4 बार 90, इसको हम 2 बार मतलब ये सेम चीज को हम 2 बार करेंगे. तो 8 into 90 का मतलब हो गया 2 complete round, एक complete round. ठीक है, 8 into 90 का मतलब एक complete round, 2 complete round मिला के कितना हो गया 8 into 90. Are you understanding my point, everyone? Tell me whether you have understood this line or not. Yes, एकदम sir. मैंने Yes, सिंपल sir. तरीके से मैंने समझाया है कि 8 बार 90, देखो एकदम जैसे कोई फॉर्मूला वाइज नहीं, 8 गुना 90, 8 टाइम्स 90 मतलब कितना हो गया 8 बार 90 घूमो, सिंपल चीज. एक कंप्लीट राउंड का मतलब हो गया 4 बार घुमा हमने, तो 2 कंप्लीट राउंड का मतलब कितना हो गया हम लोगों ने 8 बार घुमा. राइट एवरीवन? अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पार्ट. ये तो हो गया क्वाड्रेंट वाला पार्ट, मतलब घूमने वाला पार्ट कि 8 into 90 का मतलब क्या होता है. अच्छा बताओ तो एक बार 12 into 90 का मतलब क्या होगा? Sir, कितना 3 complete rounds. round? 3 complete round, right? 32 into 90 का मतलब कितना complete round? Sir, 8. Sir, 8. 8 4 जा 32 मतलब 8. 8 complete Eight round. ठीक है, rounds. अब बताओ मुझे नेक्स्ट. अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो पूछ रहा हूं ध्यान देना. अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 डिग्री ऐड कर दूं या 20 डिग्री ऐड कर दूं या फिर सपोज लेट्स से 8 into 90 plus 30 degree. Listen here. 1 into 90 plus 10 degree. मतलब मैंने बोला एक बार 90, इसके बाद क्या बताओ तो इस लाइन के बाद क्या अपने को हम लोग को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है? अपने लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है एक बार 90 घूमो और उसके बाद प्लस 10 डिग्री मतलब जस्ट वो लाइन के बाद वाले क्वाड्रेंट में चले जाओ. एक बार 90 घूमना और बोल रहे कि ये लाइन के जस्ट बाद वाले क्वाड्रेंट में चले जाओ, बिकॉज 10 डिग्री से ये पूरा क्वाड्रेंट क्रॉस तो नहीं होगा ना. समझ में ना क्या बोल रहा हूं मैं? 10 डिग्री से एक बार 90 डिग्री मतलब यहाँ पे, और इसके बाद अगर मैं बोलूं प्लस 10 डिग्री तो प्लस 10 डिग्री मतलब ये लाइन के जस्ट बाद वाला ही तो क्वाड्रेंट होगा ना. तो एक बात बताओ मुझे 1 into 90 plus 10 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 1 into 90 plus 10 डिग्री मतलब कौन सा Second quadrant होगा? Sir, second quadrant. So it is second quadrant. Now what is 2 into 90 plus 20 degree? Which quadrant? Sir, 200 degree. Sir, So second. I am asking Third. quadrant. Sir, third. Yes, third quadrant. Third. कैसे? Third कैसे quadrant. देखो एक 2 बार 90 इसके बाद प्लस 20 डिग्री. देखो ये प्लस 20 डिग्री क्या है? ये लाइन के जस्ट बाद वाले हम लोग क्वाड्रेंट में चले जाएंगे. मतलब हम जो भी ऐड कर रहे हैं वो क्या है बताओ तो लेस देन 90 डिग्री होगा. ठीक है, मतलब ये अक्यूट एंगल होगा. तो अगर हम मान लो 2 बार 90 डिग्री घूम के अगर हम प्लस 20 डिग्री कर रहे हैं मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज 3 into 90 plus 40 degree? Which quadrant is this? So fourth. Sir, the fourth quadrant. कैसे? देखो एक बार 2 बार 3 बार 3 बार पे यहाँ पे है, उसके बाद प्लस 40 डिग्री है, मतलब प्लस 40 डिग्री मींस व्हिच क्वाड्रेंट? इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑलराइट एवरीवन. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी 8 into 90 plus 30 डिग्री? बताओ. sir, first quadrant. Sir, कैसे होगा first quadrant. बताओ तो. Sir, 2 round घुमा उसके बाद फिर 30 डिग्री हो गया तो first. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. सिंपल सा चीज है. देखो 8 बार 90 का मतलब एक राउंड, 2 राउंड में तो यहीं पे है ना तुम. 2 राउंड लगा के कहां पे पहुंचा तुम? ये लाइन पे तो तुम पहुंच रहे हैं ना. इसके बाद प्लस है या माइनस है? मतलब इसके बाद हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं? इसके बाद हम प्लस कर रहे हैं. प्लस का मतलब क्या होता है? आगे जाना है या पीछे जाना है? अगर हम कोई चीज आगे. हम ऐड कर दे कुछ मतलब हम आगे बढ़ने वाले हैं. सिंपल लॉजिक है. तो ये प्लस अगर 30 डिग्री है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? नाउ टेल मी एवरीवन, Yes, sir. what is 16 into 90 degree plus 60 degree? Which quadrant is this? First quadrant. कैसे हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट? देखो ध्यान से. 16 Sir, बार 4 90 rounds का then मतलब 60. यस 16 बार 90 का मतलब क्या हुआ? 4 कंप्लीट राउंड. कितना कंप्लीट राउंड? 4. एक बार 2 बार. अब घूमते थोड़ी ना हम रहेंगे, हमको पता है ना, लॉजिक तो समझ में आ गया ना. 16 into 90 का मतलब हो गया 4 कंप्लीट राउंड. तो 4 कंप्लीट राउंड मतलब राउंड का मतलब क्या हुआ? वहीं पे हम लोग वापस आके रुक जाएंगे. इसके बाद प्लस 60 डिग्री है तो प्लस 60 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. First quadrant. अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अगर यहाँ पे 32 into 90
-10 डिग्री होता तो कौन सा क्वाड्रेंट होता? सर फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth. कैसे कैसे? सर 8 कंप्लीट राउंड और फिर 10 डिग्री नीचे। करेक्ट, मतलब एक बार एक कंप्लीट देखो 32 डिग्री का मतलब क्या हुआ? सॉरी आई एम सॉरी 32 डिग्री नहीं, 32 into 90 का मतलब क्या हुआ? 32 into 90 का मतलब हो गया 8 कंप्लीट राउंड। 8 राउंड मतलब यहाँ पे, उसके बाद माइनस है या प्लस है? माइनस। माइनस माइनस मतलब ये लाइन के बाद वाले जाएंगे या लाइन के पहले में रुक जाएंगे? पहले। पहले। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया तो बात? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये चीज ध्यान रखना, ये मत बोलना सर आपने तो एक बार घुमा और बोल रहे हैं 8 बार घूम लिए, तो तुम घुमा लो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, ऐसे बात तो बराबर हो, मतलब लॉजिक को समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 8 कंप्लीट राउंड मतलब वहां पे तो आगे 8 बार में भी चक्कर लगाएंगे वहीं पे आएगा, 100 बार लगाओगे तो वहीं पे आएगा चक्कर, अगर लगाओगे 100 कंप्लीट राउंड तो। समझ में आया मेरी बात? तो अभी तक जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है, एक बार इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से अपने कॉपी में दो चार एग्जांपल्स कॉपी कर लो, सो दैट you can understand and revise it later on, okay, after the class gets over. So let us see few more examples and then we will see the other two steps, okay. अभी तक हम लोग जो मैंने जो 3 स्टेप्स लिखवाया है उसका भी हम स्टेप 2 में ही है क्वाड्रेंट वाला पार्ट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अभी और बाकी के स्टेप्स सब ध्यान रखना। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं एक और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, देखो जैसे कि ध्यान देना, लेट्स से फॉर एग्जांपल 14 into 90 डिग्री -25 डिग्री, ठीक है। तो अभी तक हम जो भी वैल्यू दे रहे थे ना वो कैसे दे रहे थे पता है? ये जो n था वो 4 का मल्टीपल टेबल था, 4 के टेबल में। वेरी गुड, 4 का टेबल में था, लेकिन अब हम दे रहे हैं ऐसा वैल्यू जो 4 के टेबल में नहीं है, जैसे 40 डिग्री। लेकिन एक बात बताओ, 14 का क्लोज, सबसे क्लोज उससे छोटा, क्या बोला मैंने? 14 अगर 4 का मल्टीपल है तो बहुत बढ़िया है, क्वाड्रेंट एक बार में आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन 14 से जस्ट छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? बताओ। 12। तो एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन दिस वे, यू थिंक दिस वे कि 12 by 90 का मतलब कहां पे आएगा? बताओ तो, कहां पे घूम के कहां पे वापस आके रुक जाएगा? यहां पे सर 0 वापस यहां पे आके रुक जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, 12 by 90 मतलब वापस यहां पे आके रुक जाएगा। डू यू एग्री? यस सर। अब आगे देखना है, 12 के बाद यहां कितना है? थोड़ी ना यहां 12 है, यहां 14 है, तो 12 बार का मतलब हो गया 3 कंप्लीट राउंड, ठीक है। तो 12 यहां पे आके रुक गया, 12 के बाद 13, उसके बाद 14। So do you agree that 14 by 90 का मतलब यहाँ पे आएगा? यस सर। Yes, तो sir. मैंने क्या बोला? देखो 14 is not a multiple. Like what I am saying is, I was saying is कि अभी तक जो भी हम सम दे रहे थे क्वाड्रेंट वाला पार्ट को समझाने के लिए, ये जो वैल्यू था ये 4 का मल्टीपल था, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 था, 12 था, 16 था, 32 था, ठीक है। लेकिन अब जो हम वैल्यू दिए ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं है, 14 अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो 14 से जस्ट छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है? 12। तो 12 by 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड होगा? 3 कंप्लीट राउंड मतलब मैंने 12 by 90 कवर कर लिया, घूम लिया मैंने। उसके बाद यहाँ 14 है तो 12 के बाद 13 यहाँ पे आएगा और 14 यहाँ पे आएगा। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, इसके बाद प्लस है या माइनस है? 14 माइनस। माइनस का मतलब ये लाइन के मैं पहले जाऊंगा या बाद में जाऊंगा? दिमाग पहले। पहले। ये लाइन के पहले वाला जो क्वाड्रेंट का नाम है वो क्या है बताओ? सेकंड। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ? नाउ लिसन, अब बताओ मुझे तुम लोग 16 into 90 डिग्री, सॉरी 17 into 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड। सर सेकंड। सबको सोचना, सबको सोच के बताओ, ठीक है? एक दो आंसर सिर्फ दे रहे हैं वो नहीं, एवरीवन थिंक। सेकंड। देखो एक्चुअली मैंने जबरदस्ती जो है मुझे, देखो लिसन, पहला बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के 17 की जगह 16 लिखा था। हमको 17 ही देना था, मैं तुमको 16 लिख के तुमको ये हिंट देना चाहता था कि देखो 17 से छोटा 16 ही ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। 4 4 जा 16, 4 कंप्लीट राउंड, 16 16 बार यहाँ पे आ गया, 17 मतलब यहाँ पे आ गया, उसके बाद प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट एवरीवन, Yes. दिस इज क्लियर? नाउ लिसन टू नेक्स्ट। अब बताओ सबको मुझे 38 into 90
प्लस 40 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सर थर्ड। सर थर्ड। कोई सब Third सबको quadrant. सोचना है, ठीक है? एवरीवन मस्ट थिंक। अब सुनिए, मैं एक बार वापस से बता देता हूं। 38 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, बट 38 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 है? बताओ। 36। 36। तो 36 बाय 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड हुआ? सर 9। 9 बार। जितना बार भी हो वहां पे यहाँ पे आके रुकेंगे। तो 36 यहाँ पे आया तो 37, 38, उसके बाद क्या है? प्लस 40। प्लस 40 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। I hope it is clear to everyone now. I gave you multiple examples, मतलब almost I gave you many examples just to explain you this quadrant wala part. Is this clear? Yes, sir. Now see. Now everyone note down the steps. Everyone note down the steps now. देखो पहला स्टेप क्या है और ये स्टेप क्या काम में आएगा? ये स्टेप काम में आएगा अगर मान लो हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तब ये सब स्टेप्स काम में आएंगे। नाउ वन ऑफ यू एज आस्था का अनम्यूट किया हुआ ऑलरेडी, आस्था यू जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन स्लोली, नॉट फास्ट, एकदम आराम से रीड। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? रीड यस यू रीड। सर पीडीएफ वाला का? हां नहीं, अभी जो मैंने दिया था लिखवाया था 3 स्टेप्स, याद है ना? ये स्टार्ट करने से जी सर। रीड करो। Express theta is equals to 9 Just a minute. Express theta, now देखो उसके पहले क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? साइन। और थीटा क्या है यहाँ पे? 315। क्या ये एंगल 350 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं? यस डेफिनेटली बड़ा है। तो बड़ा है तभी हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप तुमने क्या रीड किया? एक्सप्रेस थीटा इन द फॉर्म n into 90 डिग्री। क्या बताओ और क्या आगे बताओ? सर प्लस 5। plus minus 5 मतलब कोई भी सिंबल, कोई भी एंगल। नाउ व्हाट डज n बिलोंग्स टू? n बिलोंग्स क्या टू है? नेचुरल 5। इसको 5 रीड करते हैं। ओके सर। व्हाट डज n बिलोंग्स टू? देखो लिखा हुआ है बगल में। व्हाट डज n स्टैंड्स फॉर? n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, मतलब ये n के जगह पे 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, डेसिमल में नहीं, आई मीन वही फ्रैक्शन मतलब डेसिमल, मतलब यहाँ पे कोई चीज नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। 5 क्या होगा? देखो लिखा हुआ है बगल में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 5 रिटन देयर? टेल मी। 5 के बारे में क्या लिखा हुआ है बताओ? So 5 के बारे में 5 is हाँ बताओ। so it is less than 90 degree. मतलब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। ये दो चीज, ये चीज ध्यान देना। मतलब हम लोग का काम है सबसे पहले इस एंगल को n into 90 डिग्री प्लस माइनस 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, ठीक है? एक्सप्रेस करने। तो एक बात बताओ मुझे सब कोई, 315 डिग्री को हम एक बार स्टार्ट करते हैं एकदम छोटा एंगल से, ध्यान देना। लिसन, एक बार हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लो सपोज 95 डिग्री, 95 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो इस फॉर्म में। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 into 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री? चेक कर लेंगे। 1 into 90 मतलब Yes, कितना हो गया? 1 into 90 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या ऐड करने से 95 डिग्री आएगा? 5 डिग्री। Plus 5 डिग्री, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा तरीका। या दूसरा तरीका क्या है? 2 into 90 डिग्री। बताओ तो 2 into 90 का मतलब कितना होता है? 180. 180 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 95 आएगा। बताओ 180 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 95 आएगा। 85। 85। अब एक बात बताओ, लिसन हियर, क्या हम इसमें 3 into 90 लिख सकते हैं? 3 into 90 मतलब अगर हम इस रूल को फॉलो करें, n into 90 plus minus 5, 5 is less than 90, n is a natural number। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे 3 into 90 लिख सकता हूँ? नो सर। नो क्यों नहीं सर। लिख सकते 3 into 90? बताओ तो। क्योंकि सर 5 का वैल्यू 90 से बड़ा आएगा। वेरी गुड। तो 3 into 90 270 होगा। 270 में जो माइनस करेंगे 95 लाने के लिए, वो 5 जो मैंने लिखा है 90 से छोटा होना चाहिए, वो वायलेट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन, एक ऑप्शन है 1 into 90 plus 5 और दूसरा ऑप्शन है 2 into 90 minus 85। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मैं पहले एक्सप्रेस करना सिखाता हूं, ठीक है? नेक्स्ट लेट्स से 135 डिग्री। अब बताओ तो मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है? बताओ फटाफट बताओ। 135 डिग्री
अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें n into 90 plus minus 5 है तो क्या लिखेंगे? Sir, So 1 into 9 9 plus 45 degree. 1 into 90 degree Nine. plus 45 45 degree. degree. दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ? Sir, 2 into 90 degree minus 45 into degree. 90 डिग्री हो गया 180 minus 45 डिग्री। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस है, ठीक है? ये हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है 1 into 90 plus 45 और दूसरा ऑप्शन है 2 into 90 डिग्री minus 45 डिग्री, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, 350 डिग्री को अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या होगा? Sir, 3 into 90 degree plus 45 degree. 45 डिग्री, ठीक है? ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? हर का दो ऑप्शन ही होगा, हर का दो ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। Sir, 4 into 90 degree minus 45 degree. अब देखो, अब जैसे देखो, सुनना है, देखो बहुत लोगों के दिमाग में 1 into 90 plus 5 तो आ गया, 2 into 90 minus 85 भी आ गया, छोटा छोटा में बहुत जल्दी दिमाग में आएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं आ रहा है कि कितना into 90 plus क्या करने से ये वैल्यू आएगा, तो मैंने उसका भी तरीका है मेरे पास, ध्यान से देख क्या करना है। लिसन, 350 डिग्री को क्या करना है, 90 डिग्री से डिवाइड कर देना। क्या करना, 350 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड कर देना। What is the remainder? 45. So we know that 350 degree, that is dividend, is equal to divisor into quotient plus remainder. You all know that dividend class 10 में पढ़ा है तुम लोग, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, but we'll keep in this format, पहले 3 फिर 90 फिर 45. अब एक बहुत बड़ा एंगल लेता हूं, ध्यान रखना, जहां पे रियली मुश्किल होगा, यहां तो बहुत इजीली हो जाता है। Let me take suppose 2975 degree, let's suppose, ठीक है? 2975 डिग्री लेंगे। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, एक बार में देख के समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में देख के थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, है कि नहीं? कि कितना इंटू 90 प्लस क्या करने से 2975 आएगा, टाइम लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अपने लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला रूल काम यूज कर सकते हैं। ये रूल क्या है बताओ तो, उस एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड कर। तो मैं एक बार टाइम दे रहा हूं सबको, यू आर ट्राई वन फर्स्ट, इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, इस एंगल को n into 90 plus minus 5 में एक्सप्रेस करके दिखाओ एवरीवन। Sir, कितना into 90 करने से क्या होगा? तो 2975 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। So we find that we can write this as 33 to 90 degree plus 5. All right. This is clear. So I hope you all have understood how to convert it. Quadrant वाला पार्ट समझ में आ गया सबको को? अब देखो, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं n into 90 में, क्वाड्रेंट भी निकालना समझ में आ गया, ठीक है? अब तीसरा चीज ध्यान से देखिए, तीसरा चीज क्या है, शॉर्टकट। अब मैं अभी एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो शॉर्टकट को यूज करके जो इतना टाइम लग रहा है ना, इतना बार घूमना, घूम के प्लस करना पड़ रहा है, ये चीज को करना नहीं पड़ेगा। I'll explain the shortcut. Everyone listen. Listen. The first thing is, let's start from the very simple examples. देखो प्रॉब्लम हो ही रहा होगा बहुत लोगों को, जैसे कि 30 times 90 प्लस घूम के फिर उसके बाद क्वाड्रेंट बताने का तरीका, हम एक थोड़ा बहुत इजी मेथड बताते हैं, ध्यान से। 1 into 90 plus 10 degree, let's say 2 into 90 plus 30 डिग्री। और एक चीज तुम लोग देख रहे होगा, हर जगह में ये एंगल को हर जगह 90 डिग्री से लेस है, मतलब एक्यूट एंगल है, क्योंकि वो जो कंडीशन है n into 90 plus minus 5, उस 5 क्या होना चाहिए, लेस देन 90।
ठीक है 4 into 90 plus 60 degree 9 into 90 degree plus 25 degree. Let's say few examples. Listen very carefully. सबसे पहले सबको बताओ 1 into 90 plus 10 degree कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ? Second, सेकंड क्वाड्रेंट Second. सेकंड यहाँ पे third, 1 into 90 plus 10 degrees second, 2 into 90 plus 10 30 degree third, 3 into 90 plus Third. 40 degree fourth. ये fourth हो गया फोर्थ हुआ ना? एक चीज तुम लोग देखो ऑब्जर्व करो ध्यान से। ये 1 है ना, देखो ये 1 है तो ये कौन सा है? ये क्या है बताओ तुम? 2. ये क्या बताओ तुम? 2. तो ये क्या है? three, ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? फोर्थ एक चीज तुम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो भी है n का वैल्यू उससे एक ज्यादा जो है क्वाड्रेंट मतलब +1 इज योर क्वाड्रेंट। देखो अगर हम ये लॉजिक बोल देंगे, खाली इतना अगर हम बोल देंगे ये इनकम्प्लीट है, क्यों है? तब तो तुम लोग ऐसे बोलेंगे ना सर यहाँ पे 9 है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 10th क्वाड्रेंट। लेकिन क्या 10 क्वाड्रेंट होता है क्या? नहीं, हम बता रहे थे। लिसन, अगर मान लो ये जो n है, अगर n अगर 4 से लेस है, लिसन ये क्या बोला मैंने? अगर n का वैल्यू अगर 4 से लेस है तो क्वाड्रेंट एक लाइन में देख के बता सकते हो क्या? n plus 1 इज ए क्वाड्रेंट। अगर 4 या 4 से ज्यादा है, सुनना, अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? सुनना बता। तो n को क्या करना? n को 4 से डिवाइड कर देना और रिमाइंडर जो भी बचेगा, रिमाइंडर +1 इज योर क्वाड्रेंट। रिमाइंडर +1 इज योर क्वाड्रेंट। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। अब बताओ मुझे 4 into 90 plus 60, एक बार घूम के देखो, लंबा वाला मेथड, चक्कर लगा के देखो, 4 by 90 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब एक काम करो, शॉर्टकट लगा तो 4 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0, 0 में 1 ऐड कर दिया, क्या हुआ देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं बताओ? अब मैं इस वाले में देखता हूं, व्हाट इज 9 into 90 plus 25, व्हिच क्वाड्रेंट इज दिस? शॉर्टकट छोड़ो, पहले एक बार लंबा मेथड देखो। so 3, कैसे? 8 बार 90 मतलब 2 कंप्लीट राउंड, 9 बार तो यहाँ पे आ गया, प्लस 25 मतलब सेकंड हुआ। प्लीज चेक वंस प्रॉपर्ली, नॉट 3। हाँ सर यस second, सेकंड क्वाड्रेंट अब देखो शॉर्टकट लगा के एक बार देखते हैं। शॉर्टकट क्या है बताओ, रिपीट करो सब कोई, क्या है शॉर्टकट? सर 10 by 4 by So plus 1, 1 plus 2 9 1. को 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड करना है और सर जो रिमाइंडर Remainder आएगा जो उसमें बचेगा, +1 +1 वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? अब देखो एक और एग्जांपल, 34 into 90 plus 20 डिग्री। देखो यहाँ काम कर रहे हैं तो 34 into 90, एक बार लंबा मेथड फॉलो करते हैं। 34 का थर्ड मतलब हो गया क्वाड्रेंट 8 बार 8 कंप्लीट राउंड। पहले 34 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो पहले मैंने 8 कंप्लीट राउंड लगाया, 1 2 3 ऐसे करके 8 कंप्लीट राउंड लगाया, मतलब 32 बार यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। उसके बाद 34 मतलब 32 यहाँ पे, 33 34, इसके बाद क्या बताओ तो प्लस, तो प्लस 20 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं? अब एक बार शॉर्टकट भी लगा के देखते हैं, तो 34 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, व्हाट इज रिमाइंडर? 2 2 + क्या 1 करना है? 2 + 1, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? काम कर रहे हैं तो सुनना एक बार, अब फिर से देखो सब कुछ। इसमें शॉर्टकट में क्या है, दो चीज ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, हर जगह ये प्लस होना चाहिए, माइनस में काम नहीं करेगा, समझ में? माइनस में काम नहीं करेगा मतलब क्या है? ये अगर -25 डिग्री होता तो काम नहीं करता, ये -20 डिग्री होता तो काम नहीं करता, ये -10 डिग्री होता तो काम नहीं करता। ये सिर्फ काम करेगा अगर जो भी हम एंगल ऐड कर रहे हैं ना, मतलब हम जो भी कर रहे हैं एंगल ये लिख रहे हैं वो ऐड फॉर्म में होता है, एडिशन फॉर्म में, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, इसका रूल क्या है? रूल ये है कि अगर n का वैल्यू 4 से लेस है तो वो वैल्यू में 1 ऐड कर दो, क्वाड्रेंट हो गया। अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? उस n को 4 से डिवाइड कर देंगे Right. और रिमाइंडर जो बचे उसमें 1 ऐड कर देंगे, दैट इज अ क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, Is this sir. clear to everyone? So now, Yes, can sir. I say that? Can I say that इतना जो लंबा हम लोग तब से जो देखे जा रहे थे क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट, इसका शॉर्टकट भी है? तो अब बताओ तो Yes, मुझे एक sir. बार सब कोई, अगर मान लो ये अगर शॉर्टकट नहीं रहता तो 100 into 90 plus
45 डिग्री में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत तो ऐसे कुछ होता नहीं, 102 ले लेते हैं। दिक्कत तो ऐसे कुछ होता नहीं क्योंकि वो भी तरीका पता है तुम लोग को, वो कितना बार एक क्वाड्रेंट का मतलब, एक कंप्लीट राउंड का मतलब कितना होता है। तो बताओ तो 102 into 90 plus 45 क्वाड्रेंट वाला जो शॉर्टकट है वो फटाफट बोलो, शॉर्टकट वाले। थर्ड The first. नहीं फर्स्ट नहीं, ठीक से बोलो। थर्ड थर्ड क्यों हुआ थर्ड? 102 Sir, को 2 plus 4 से 1. डिवाइड किया तो डिवाइड करने से रिमाइंडर बचेगा 2, 2 plus 1 third is a quadrant. So I think you all have understood today's class, right? तो आज का क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, पहला कि जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स था वो सारे स्टैंडर्ड एंगल्स का मैंने वैल्यू निकालना सिखाया, क्लास 10 में किया हुआ तो फिर भी वो रिवाइज करा। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा, स्टेप्स लिखवा दिया मैंने, और स्टेप्स में अभी तक हम लोगों ने क्या किया बताओ तो, कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं n into 90 के फॉर्म में, कैसे हम लोग कोई भी एंगल को अगर 90 से बड़ा है तो कैसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, वो हम लोगों ने देखा। और सेकंड पॉइंट देखा हम लोगों ने क्वाड्रेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्वाड्रेंट का लंबा मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी दोनों समझ में आया। तीसरा पार्ट विल स्टडी नेक्स्ट, और हम लोग उसके बाद करेंगे 9 and 10। So this is the end of our today's class. You can copy whatever I explained in the board.